اس کہانی میں ٹونٹنی چڑیا کا پتی ٹونو بے روزگار ہوتا ہے، جو ہر روز ٹھنڈ میں روز کام کی تلاش میں جاتا ہے، لیکن ناکام ہو کے گھر واپس آ جاتا ہے۔ ٹونو جی، آج پھر کوئی کام نہیں ملا آپ کو؟ ہاں ٹونٹنی، میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ لیکن تم پریشان نہ ہو، میں کوئی کام ڈھونڈ لوں گا۔ میں پھر جاؤں گا اور کام ڈھونڈ کے آؤں گا۔ اس طرح ٹونو اگلے دن بھی کام کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ وہ بہت کوشش کرتا ہے مگر پھر گھر واپس آ جاتا ہے اور ٹونٹنی کو کہتا ہے، ٹونٹنی، میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ روز کام ڈھونڈنے جاتا ہوں، کوئی کام ہی نہیں ملتا۔ میں اب ایسا کیا کروں؟ ٹونو جی، آپ پریشان نہ ہوں، ابھی آپ باہر ٹھنڈ سے آئے ہیں، آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ ٹونو جی، آپ چائے پئیں، میں کالو کبا کے دکان پہ جاتی ہوں اور اس سے تھوڑا سا راشن لے کے آتی ہوں، کیا پتہ وہ راشن دے دے، اس طرح سے میں گھر کا کھانا بنا لوں گی۔ ٹونٹنی، آخر کب تک ایسا چلے گا؟ ہماری بیٹی سنہری بھی اب بڑی ہونے والی ہے، اس کو اسکول میں بھی داخل کروانا ہے، خرچے بڑھتے جا رہے ہیں اور کام کوئی نہیں مل رہا۔ ہاں ٹونو جی، ہماری بیٹی ہے، اس کو بھی اسکول ایڈمیشن کروانا ہے، لیکن فی الحال ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کھانے کو ہی کچھ نہیں ہے، میں خود بہت پریشان رہتی ہوں۔ تم آج جا کے کالو سے راشن لے آؤ، کیا پتا وہ دے دے، اور آج تو گھر کا تم چولہا چلاؤ۔ دیکھتے ہیں کل کیا بنتا ہے، کل پھر میں جاؤں گا، کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ لوں گا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور ٹونٹنی کالو کوا کی شاپ پہ چلی جاتی ہے۔ کالو کوا کو جا کے کہتی ہے، کالو جی تھوڑا سا راشن گھر کے لیے دے دو، گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے، ہم نے 2-3 دن سے کھانا نہیں بنایا۔ ارے ہاں ٹونٹنی، راشن تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، اس سے پہلے تم مجھے پیسے دے دو، پھر راشن لے لینا۔ ارے کالو بھیا، پیسے تو میرے پاس نہیں ہے، ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، ہمیں راشن دے دو، پیسے میں آپ کو بہت جلد آ کے دے دوں گی۔ 3 دن سے بھوکے ہو یا مہینے سے بھوکے ہو، اس سے مجھے کیا؟ پہلے بھی تم لوگوں کا بہت ادھار ہے، وہ مجھے واپس کرو۔ کالو بھیا، راشن دے دو، ہم آپ کو پچھلے پیسے بھی واپس کر دیں گے اور یہ والے پیسے بھی میں آپ کو واپس کر دوں گی، ہماری مجبوری کو آپ سمجھو۔ ارے نہیں ٹونٹنی، اس بار میں آپ کی کوئی مجبوری نہیں سمجھ سکتا، اتنے بھی مجبور ہو تو جا کے کہیں ڈوب مرو، اور مرنے سے پہلے اپنا گھر میرے نام کروا دینا، جتنا سامان تم لوگوں نے لیا ہے وہ اس میں ہی آ جائے گا، تم تینوں جا کے کہیں مر جاؤ، ویسے بھی تم لوگ اس دھرتی پہ بوجھ ہو، اپنا تو کچھ کر نہیں سکتے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہو، جاؤ یہاں سے۔ ارے بچوں، دیکھتے ہیں ٹونٹنی اپنا راشن کا انتظام کیسے کرتی ہے، تب تک پیارے بچوں اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دو، اس سے میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس طرح ٹونٹنی اس کی دکان سے نکل کے واپس گھر کو چلی جاتی ہے۔ ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور رستے میں ایک کنویں میں کالو کوا کا بیٹا ڈوب رہا ہوتا ہے اور وہ چلا رہا ہوتا ہے کہ مجھے بچاؤ بچاؤ، تو ٹونٹنی ادھر سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس کالو کوا کے چھوٹے بیٹے کو کنویں سے باہر نکال دیتی ہے۔ ارے چھوٹے سے کوا، تسلی رکھو، آپ بالکل ٹھیک ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ صحیح سلامت ہو۔ ادھر ہی کالو کوا یہ سب دیکھ لیتا ہے اور دیکھتا ہے تو ٹونٹنی کے لیے اس کے دل میں بہت احساس پیدا ہوتا ہے، اس کو وہ اپنی دکان پہ واپس لے آتا ہے اور اس کو کہتا ہے، ٹونٹنی، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میرے بیٹے کو بچایا ہے،
इतना बड़ा एहसान मैं तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारे लिए ये सारा राशन है, तुम अपने घर ले जाओ। और उस पोटली में कुछ पैसे भी है, अपना कारोबार शुरू कर दो। आज के बाद टुंटी तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाना, और मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। तुमने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तरह कालू कौवा को टुनटनी की अच्छाई का एहसास होता है और उसको ढेर सारा राशन और कुछ पैसे दे देता है, जो टुनटनी लेके घर आ जाती है। घर आके टुनटनी टुन्नू को सारा वाकया बताती है कि किस तरह कालू ने उसको राशन दिया। टुन्नू जी, अब तो हम अपना कारोबार भी बना सकते हैं, इसमें पैसे भी हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया टोंटनी के कालू ने इतना रहम खा लिया हम पे। लेकिन अब सोचो हम कौन सा कारोबार करें जिससे हमें अच्छा खासा फायदा हो। टुन्नू जी, मुझे गोलगप्पे बनाने बहुत अच्छे से आते हैं। मैं गोलगप्पे बनाया करूंगी और आप गोलगप्पे बेचा करना। इस तरह हमारा कारोबार अच्छे से चल जाएगा और हम हंसी खुशी रह पाएंगे। हाँ टोंटनी, तुम ठीक कह रही हो, तुम गोलगप्पे बहुत ही अच्छे और मज़े के बनाती हो। इस तरह से हमारा कारोबार शुरू हो जाएगा और फिर हम अपनी बेटी का एडमिशन भी करवा देंगे। इस तरह फिर टुनटनी और टुन्नू की जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लग जाती हैं और वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। टुनटनी और हाथी इस जंगल में सबसे गहरे दोस्त होते हैं। हाथी टुनटनी का बहुत ही अच्छा और प्यारा दोस्त बन जाता है। वो हर वक्त एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। आज तो हम साथ वाले जंगल में घूमने फिरने जाएंगे और बहुत ही मज़े करेंगे, एंजॉयमेंट हो जाएगी हमारी। जंगल की और सारे पंछी ये देख के बहुत जलते हैं और वो ये नहीं चाहते कि टुनटनी हाथी की दोस्त बने या उसके साथ रहे। पंछी है पंछियों में रहे, ये क्या तरीका हाथी के साथ हर रोज कहीं ना कहीं आती जाती। अब देखो वो जा रही हाथी के साथ दूसरे जंगल। पंछियों को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त ना होती थी कि एक पंछी होके जानवर की दोस्त है और हमें तो कोई मुंह नहीं लगाता। इस तरह कालू कौवा बंटी कबूतर और रानी कौवा को प्लान बताता है। मेरे प्लान के मुताबिक तुम लोग काम करो, फिर देखना ये हाथी कैसे हमारी जाल में फंसता है। अरे ठीक है कालू कौवा, तुम ठीक कहते हो, तुम्हारा प्लान बिल्कुल बेस्ट है। हम तुम्हारे प्लान के मुताबिक काम करेंगे और इन दोनों को एक दूसरे से जुदा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज तो हमने बहुत एंजॉय किया है। इस तरह हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे कभी भी छोड़ के ना जाना। टोंटनी, तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं क्यों अपनी प्यारी सी दोस्त को छोड़ के जाऊंगा? हम हमेशा साथ रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे और साथ में ही रहेंगे। कभी भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। इधर से जंगल के दूसरे पंछी हाथी को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे होते हैं। हम पंछी हैं तो क्या हुआ, हम उस जानवर को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कालू कौवा, आपको ये तो पता होना चाहिए ना, हम कमजोर पंछी उसको कैसे पिंजरे में बंद करेंगे। चलो, मैं तुम्हारे प्लान के मुताबिक ही काम करूंगी, लेकिन मुश्किल है बहुत। रानी कवि, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तुमने अपने प्लान के मुताबिक ही रहना है। हम तुम्हारा साथ देंगे। अगर कोई भी मुश्किल वक्त आया, वो देखो सामने मैंने ये पिंजरा तैयार कर लिया है, इसमें हमने हाथी को कैद करना है। ये हुई ना बात बंटी, तुमने तो बहुत अच्छे से इंतजाम किया है। अब देखना वो हाथी किसी सूरत में हमसे नहीं बच पाएगा, वो उधर भूखा ही मरेगा। इस तरह जंगल के बाकी पंछियों ने हाथी के लिए पिंजरा तैयार किया होता है, जिसमें वो उसको कैद करना चाहते हैं और उसके मुताबिक वो प्लान बनाते हैं और उसको वहाँ कैद करके भूखा मारना चाहते हैं।
मैंने ये पिंजरा जंगल के बिल्कुल आखिर में ही बनाया है। टूटनी कभी भी उसको नहीं ढूंढ पाएगी, चाहे वो लाख कोशिश करे। इस तरह वो उधर ही मर जाएगा। इस तरह हाथी जब वहाँ से गुजरता है तो रानी कभी शोर मचा रही होती है कि मुझे बचाओ, मैं पिंजरे में फंस गई हूँ। यदि कोई है, मुझे बचाओ, मेरे पंख इस पिंजरे में फंस चुका है, कोई निकालो, मेरा पंख टूट गया तो मैं कैसे उड़ूंगी, मुझे बचाओ। हाथी रानी कवि को बचाने पिंजरे में पहुंच जाता है और जैसे ही उसको बचा लेता है, रानी कवि उसका शुक्रिया अदा करती है। प्यारे बच्चों, देखते हैं ये जंगल के पंछी हाथी के साथ क्या करते हैं। तब तक प्यारे बच्चों अपने प्यारे प्यारे और नन्हे नन्हे हाथों से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इस तरह रानी कवि पिंजरे को बाहर से लॉक लगा के हाथी को पिंजरे में बंद करके उड़ जाती है। हाथी बेचारा अंदर कैद हो जाता है और यहाँ टुनटुनी जंगल के कोने कोने में अपने दोस्त हाथी को ढूंढ रही होती है। हाथी मेरे दोस्त, तुम कहाँ चले गए हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। टूटनी चिड़िया जंगल के हर कोने में अपने दोस्त हाथी को तलाश करती रहती है। वो कभी कहाँ और कभी कहाँ अपने दोस्त हाथी को ढूंढती रहती है और हाथी यहाँ पे बहुत चिल्ला रहा होता है। अरे मेरी दोस्त टुनटुनी, मेरी आवाज सुनो, मैं यहाँ पिंजरे में कैद हूँ। पंछियों ने मुझे कैद किया हुआ है। इधर पंछी बहुत खुश होते हैं कि हमने हाथी को पिंजरे में बंद कर दिया है और अब वो वहीं भूखा मर जाएगा और टुनटुनी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे तो उस हाथी को कैद करने पे बड़ा ही मजा आया और उसको कैद करके वहाँ से फौरन ही निकल आई। अब वो वहीं पे कैद है और टुनटुनी बेचारी जंगल में परेशान होगी। सारे पंछी उस हाथी के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि टुनटुनी झाड़ियों में बैठ के उनकी बातें सुन रही होती है और उसको पता चल जाता है कि इन्हीं पंछियों ने मेरे दोस्त हाथी को कैद किया हुआ है। वो बहुत रोती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती क्योंकि वो सारे जंगल में अपने दोस्त हाथी को ढूंढ चुकी होती है। जितनी ही टुनटुनी को अपने दोस्त हाथी की याद आती है, उतनी ही हाथी को अपनी दोस्त टुनटुनी की याद आती है। इधर हाथी भूख की वजह से बेहाल पिंजरे में गिरा हुआ होता है कि टुनटुनी चलते चलते उड़ते उड़ते जंगल के आखिर तक पहुंच ही आती है और वो देखती है कि उसका हाथी दोस्त पिंजरे में बंद होता है। अरे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, तुम इधर हो, मैं तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रही हूँ। टूटनी चिड़िया अपने दोस्त हाथी को पिंजरे से बाहर निकालती है, उसको पानी पिलाती है और कुछ खिला पिला के उसको कहती है, मेरे प्यारे दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे पता है ये सब पंछियों का ही प्लान था और उन्होंने तुम्हें यहाँ कैद किया। हाँ टुनटुनी, ये पंछियों का ही प्लान था। शायद वो हमारी दोस्ती से जलते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कैद किया और मुझे मारने का प्लान बनाया। इस तरह टुनटुनी और हाथी वहाँ से घर को निकल पड़ते हैं। हाथी रास्ते में यही सोच रहा होता है कि अब वो उन पंछियों को ज़रूर सबक सिखाएगा क्योंकि उन्होंने इनके साथ बहुत गलत किया है। इस तरह टुनटुनी और हाथी जब घर पहुंचते हैं तो टुनटुनी उसको कहती है, मेरे प्यारे दोस्त, अब तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अब तुम उन पंछियों के जाल में कभी ना आना। हाँ टुनटुनी, मैं अब ख्याल रखूंगा, लेकिन वो पंछी अब मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे उनकी साजिश का पता चल चुका है। अब मैं उनको उनकी सजा जरूर दूंगा। इस तरह इधर पंछी बहुत खुश होते हैं और वो इस बात की खुशी मना रहे होते हैं कि इतने दिनों से हमने उसको बंद किया हुआ है और वो भूख से मर जाएगा। इस तरह वो दोनों दोस्त जुदा हो जाएंगे। टुनटुनी बेचारी रो रही होगी कि मेरा दोस्त मर गया। हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं उन दोनों को जुदा करके। ये सब यूं ही बातें कर रहे होते हैं कि उनका घर हिलने लग जाता है। अरे ये तुम लोगों का घोंसला क्यों हिलने लग गया? लगता है ये गिरने वाला है। उन पंछियों को पता चल ही जाता है कि हाथी वापस आ गया है और वो जिंदा है और अब वो उनको ज़रूर नुकसान पहुंचाएगा।
اس طرح ہاتھی اپنے پورے زور و شور سے ان پنچھیوں کا گھونسلہ گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ہوئی نا بات، اب نہیں یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ میں اپنی دوست ٹنٹنی کو جا کے یہ خوشخبری دیتا ہوں، میں نے اپنا بدلہ ان سے لے لیا، اب وہ بالکل سیدھے ہو جائیں گے یا تو اس ندی میں بہہ جائیں گے۔ اس طرح ہاتھی اپنا بدلہ ان پنچھیوں سے لے ہی لیتا ہے اور گھر آ کے واپس ٹنٹنی کو سارا قصہ سناتا ہے۔ ٹنٹنی یہ سن کے بھی بہت خوش ہوتی ہے۔ میری دوست ٹنٹنی، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا، ہم دونوں مل کے رہیں گے۔ یا تو ان کو عقل آ گئی ہوگی یا پھر وہ ندی میں ہی بہہ گئے ہوں گے، اور اگر بچ بھی گئے تو ہم سے معافی مانگنے ضرور آئیں گے۔ اس طرح ٹنٹنی اور اس کا دوست ہاتھی وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اب ان کو کوئی بھی نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا۔